Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video we'll talk about 6 months left to get. आज जब मैं शूट कर रहा हूँ तो 9th में है, probably 10th 11th में तक ये वीडियो ऊपर जाएगा and you will have almost 6-7 months to get and this is like a place बहुत लोग शुरू करते हैं and you know there's a general anxiety in everyone कि यार कर पाएंगे कि नहीं, is it enough time? So we'll talk about it. For people who don't know me, my name is Hemant Ulsan. I recently graduated from IIM Kozhikode PGP batch of 2025. I scored 97.84 percentile in my third attempt, and my journey has been quite like I would say significant in some sense. क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 43 स्कोर किया, फिर 85.5, फिर 97.84 with a 2 year gap and an average profile. But yes, my category was CWS. I'm just putting the expectation straight ताकि आप लोगों को ना लगे कि बंदा झूठ बोल रहा है. ठीक है. So now the stages in cat prep. Acha, by the way, this video is not going to be edited much. So if you are someone who is here to see fancy videos and not realistic ones, you can drop off. But yes, if you are here for true value, if you are here for some eye-opening tips, or I can say some mistakes that I did, which you can avoid to make your cat attempt better, please stick around. Yes. So that being said, यार तीन चार स्टेजेस होते हैं प्रिपरेशन में. ठीक है, एक जहां बहुत अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, फिर आप अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो, फिर क्या आप मॉक्स दे रहे हो, एंड फिर फाइनल होता है रिवीजन वगैरह एंड एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो. ठीक है. नाउ द थिंग इज फाउंडेशन का टाइम चला गया. विल इट अफेक्ट योर कैट स्कोर्स अ लॉट? नो. Will it affects like will it affect your hard work question? Yes. You have to now work harder than many people who started before you for obvious reasons. कि यार कुछ चीज ऐसे है जो आपके फाउंडेशन में हो तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास वो नहीं है, let's say for example my brother is an IITian and he scored 99.75 in his first CAT attempt without preparing for a day. भाई मैं उससे नहीं भिड़ सकता क्योंकि उसका फाउंडेशन इतना अच्छा है, राइट? बट फॉर समवन लाइक मी हु इज एवरेज, foundation has to be set. So we are talking about average people here. Someone like me, someone like probably you who is watching. I'm sure a person who's on the path to they get 99.5, 99.6, they hardly watch any videos. That is my true reflection. I could be wrong. Uh, but हाँ, foundation का time चला गया. So the first thing now, if you're starting out and you're not a repeater, then know the syllabus. I'm not going to list anything here. Just go search random websites. You will get a lot of data. Crack you to IIM वो सब या किसी के भी वीडियो से उठा लो यार. But हाँ, तीन सेक्शन होता है: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DILR, which is the toughest I would say, and quants. Right now, if you're starting from May, you have to complete your syllabus anyways by August or September, is what I believe. September mid तक भी आप करो तो चलेगा. But do you need to do anything? Everything? Probably not. You don't need to know every topic, which is a catch. But then this is not my way of saying you कि आप कोशिश नहीं करना. Because if you want to be at a top tier percentile, you need to know everything. मेरे को अगर 99.5 चाहिए होता तो मैं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ नहीं ला सकता था. मे बी आई कुड हैव हिट 98.5 बट नॉट 99.5. ठीक है. सो योर फर्स्ट एम शुड बी टू नो, ट्राई टू कवर एवरीथिंग, एंड यू विल हैव टू पुल स्ट्रिंग्स अ लॉट बिकॉज इट्स मे. सो हो सकता है आपको 5-6 घंटे दिन के देने पड़े. फॉर पीपल विद जॉब इट्स गोइंग टू बी टफ, बट यू हैव टू मैनेज सम हाउ. स्लीप विल गो अवे. देखो, आपको पहले अपने आप को कन्विंस करना होगा कि आप इस जर्नी में खुद को होल्ड करने वाले हो, बिकॉज इफ दैट्स नॉट द केस इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ. सो आई एम अज्यूमिंग दैट इज द केस, एंड 5-6 घंटे आप दोगे. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो चीजें: रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, व्हिच इज वेरी वेरी मच आई वुड से सेल्फ एक्सप्लेनेबल. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करने के लिए क्या करना है? आपको अपनी रीडिंग अच्छी करनी है, आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है. रीडिंग अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ऑब्वियस आंसर है भाई, रीड करो. एंड वेराइटी वाली चीजें रीड करो. ये नहीं कि यार आपको स्टोरी बुक अच्छा लगता है, सिर्फ आप स्टोरी बुक पढ़े जा रहे हो. बिकॉज व्हेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्राइक्स, इट वुड बी इकोनॉमी, इट वुड बी हिस्ट्री, फिलोसफी, कुछ भी, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, समथिंग दैट यू आर नॉट रियली अवेयर विद. इसीलिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ो, एऑन के आर्टिकल्स पढ़ो, और रैंडम आपको जो अच्छा लगता है शुरुआत उस चीज से करो. सी, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव रीडिंग हैबिट. सो स्टार्ट विद समथिंग दैट इंटरेस्ट यू. लेट्स से स्पोर्ट्स इंटरेस्ट यू, रीड एडवांस आर्टिकल्स अबाउट स्पोर्ट्स. एंड वंस यू हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, देन एक्सपैंड कि हाँ भाई अब हम और पढ़ेंगे, अब हम और पढ़ेंगे. 2 महीने में यू विल सी योर रीडिंग स्किल बिकमिंग मच मच बेटर. कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने के लिए क्या करना है कि यार जो आप रीड कर रहे हो ना, वो बस रीड मत करो, समझो. हर लाइन के अंदर इंसान बोलना क्या चाहता है. लास्ट में हो सकता है तो 2 लाइन में समराइज करो यार कि ये पैराग्राफ 2 लाइन में बोलना क्या चाहता था. क्या आप वो चीज समझ पा रहे हो? अगर हाँ, सो यू हैव डन इट वेल. हाउ डू यू नो? जस्ट कॉपी पेस्ट द पैराग्राफ, पुट इट ऑन चैट जीपीटी एंड आस्क गिव मी अ टू लाइन समरी. आपने जो समरी सोचा और चैट जीपीटी ने जो समरी दिया, जस्ट ट्राई टू मैच इट. हो सकता है जीपीटी रॉन्ग हो, आई एम नॉट सेइंग,
but then there's less probability because of the way it has advanced. So put GPT to your use here. ठीक है? तो धीरे धीरे आपका यार ये ठीक हो जाएगा, मई जून तक आपका ठीक हो जाएगा। हो सकता है तो हफ्ते में 3 दिन करो VRC पहले 2 महीने, उसके बाद का हम स्ट्रेटेजी बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंड कम्स DILR। ठीक है, अच्छा वैसे मैंने VA की बात नहीं की। VA इज वर्बल एबिलिटी इन VARC। सो वर्बल एबिलिटी इज मोस्टली समरीज, पैरा जंबल्स। ठीक है, अगर आपका आरसी सही है ना, ये सब भी सही हो जाएगा। एंड मोस्ट क्वेश्चन आरसी से आते हैं, सो योर प्राइमरी एम शुड बी टू गेट आरसीज राइट। VA सो होता है मोस्ट लोग का ही। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग द लार्जर फिश राइट, एंड देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्मॉलर फिश। नाउ लेट्स मूव टू DILR। DILR is a very tricky section. And right now, I would say अगर आपने 400-500 सेट प्रैक्टिस कर ली by the end of YAT, you will be good to go. 400-500 बहुत है भाई, 7 months, 210 days, almost 3 sets each day without a fail. Variety is the key here. अगर आप बहुत वैरायटी के सेट करोगे तो ही आप एक्सेल करोगे। हम DILR के बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी पहले 2 महीने के लिए, मई जून नहीं, तो मई टू जून, जून टू जुलाई, you have to practice some important type of DILR sets, which includes charts, which includes puzzles, which includes Venn diagram, which includes matrices. ठीक है, you might also do games, but वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। You can skip cubes, I skip cube, but हाँ, अगर आपको सही लग रहा है करो। Try to do some numeric puzzles. ठीक है, one advice, try कि आप सुडोको रोज खेलो, काकुरो रोज खेलो, काकुरासा रोज खेलो। ट्रस्ट में ये 3 चीज रोज करोगे ना, आपका फियर ऑफ नंबर्स हट जाएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, एंड DILR विल बिकम अ बिट इजियर फॉर यू। ठीक है, पहले 2 महीने आपको खुद को टाइम बेसिस पे जज नहीं करना है। 3 सेट करने हैं, ठीक ठाक अच्छे सेट करने हैं। अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है, अपने आप को टाइम दीजिए और कीजिए। रिसोर्सेज, अनस्तर से शंकर का एक चैनल है, उसमें 200 सेट है। आई क्वांटा के चैनल में सेट्स है। रवि रोधा सर के चैनल में इतने सारे सेट्स है। इलाइट्स ग्रिड के चैनल में सेट्स है। फ्री कंटेंट की कमी नहीं है, इंटेंट ही है। अगर आपका इंटेंट है और अगर आप कोई कोचिंग सेंटर में हो तब तो और भी बढ़िया, उन्होंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया होगा, तो फिर आप उनका मटेरियल फॉलो कीजिए, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो ये रही DILR की बात, एंड इतना ही फॉलो करना अभी। सुडोको, काकुरो, काकुरासा एंड वेराइटी। ट्रस्ट मी, DILR में कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होते, इट्स अबाउट प्रैक्टिस, इट्स अबाउट knowing how to read a set, how to understand a set, what is being asked from the question, how much you need to solve, how much you need to present in a data। मतलब आपको अगर एक पैराग्राफ दिया और उसको आपको टेबल में बनाना है, so how are you making the table so that it's the most clear for you, आपके लिए वो बहुत ही हॉच पॉच ना बन जाए। ठीक है, एंड थर्ड एंड द फाइनल थिंग, QA। QA will be a pain for a lot of people। ठीक है, वन रीजन इज बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर फियरफुल ऑफ मैथ्स। सेकंड यार, 7 महीने में ना QA का सिलेबस में अगर आपको सितंबर तक खत्म करना है, so you'll have to stretch yourself a lot, and I'll be very honest, you actually have to do। तो आप QA तो किसी दिन मिस कर ही नहीं सकते, आपको 1 से 2 घंटे QA पे देना ही देना होगा। Now, QA may be arithmetic or algebra. From the last year trends, they have been the topics which have given the most marks। तो बहुत लोग सिर्फ उसी को करके जाते हैं, 95 96 ले जाते हैं, विच इज फाइन, मैं भी वही किया था। अगर आपसे और कुछ नहीं हो रहा मत कीजिए, बट हाँ, आई वुड से स्टार्ट विद अरिथमेटिक, मास्टर इट विद इन 1 मंथ, मई 15 से जून 15, देन स्टार्ट विद अलजेब्रा, मास्टर इट विद इन 1 मंथ, जून 15 से जुलाई 15, फिर जुलाई मिड से सितंबर मिड तक नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ सब निपटा देना। द वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव हियर इज, क्वांट्स में प्रॉब्लम क्या होता है, लोग भूल जाते हैं, एंड द रीजन इज लाइक दे हैवंट प्रैक्टिस। सो मैंने अरिथमेटिक प्रैक्टिस किया आज से 1 महीने पहले, मैं सब भूल गया भाई। जब वापस से 1 महीने बाद मैंने देखा सब, मेरा तो दिमाग फट गया। अरे यार मेरे को इसका फॉर्मूला याद नहीं, अरे यार मेरे को इसका कॉन्सेप्ट याद नहीं, इसका शॉर्टकट याद नहीं। तो भाई क्रैक्यू का डेली आता है, डेली टेस्ट दो, उसमें कभी अरिथमेटिक आता है, कभी अलजेब्रा आता है, कभी ज्योमेट्री आता है। दिस विल गेट यू कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर आप सेक्शनल मॉक्स दे सको तो वो भी बढ़िया है, बट दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट। आपका मॉक्स जुलाई से डेफिनेटली शुरू हो जाना चाहिए, एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यू हैव टू फाइनलाइज योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी। सो यू विल डू अ लॉट ऑफ इटरेशंस, कभी आप VA से शुरू करोगे, कभी आप RC से शुरू करोगे, कभी आप 4 VA के बाद एक RC करोगे, कोई हो सकता है स्ट्रेच में ही पहला 8 VA कर ले, कोई VA करे ही नहीं। वैसे ही DILR में आप किस तरह से सेट सिलेक्शन करते हो, कौन सा सेट आपका प्रायोरिटी में रखना चाहते हो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। QA में भी आप कौन सा वे में जाना चाहते हो, ABC राउंड 1 2 3 राउंड, बहुत कुछ है, बहुत सारे वेरिएबल्स है। ठीक है, सो जुलाई से आप मॉक शुरू करोगे, देन बाय द एंड ऑफ सितंबर यू विल डेफिनेटली नो which is the strategy you want to follow, and then in October November you just have to stick to that strategy to become so good at it कि भाई आप खुद को डिच ना करो एग्जाम हॉल में। बट दैट इज अ थिंग ऑफ लेटर। अभी के लिए आप अगर शुरू कर रहे हो तो मैंने 2 2 मंथ का रोड मैप आपको दे दिया है, उतना आप फॉलो करिए, एंड दैट विल बी मोर एंड इनफ। ट्रस्ट मी, देयर इज नो फ्लफ हियर। सुडोको, काकुरो, काकुरासा,
3 सेट या 4 सेट अ डे, आरसीज, अ लॉट ऑफ आरसीज प्रैक्टिस, क्यूए में arithmetic करो, फिर algebra करो, and keep practicing QA, keep giving time tests so that your concepts get revised. रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जो कुछ रिसोर्सेज मुझे पता है। बट हाँ, इफ यू आर एनरोल्ड इन अ कोचिंग सेंटर, जस्ट फॉलो देम, बिकॉज रिमेंबर, नो कोचिंग सेंटर वांट्स उसका बच्चा फेल हो। दे ऑल्सो वांट दैट वर्ड ऑफ माउथ, उनका बच्चा पास करेगा तो उनके पास नेक्स्ट टाइम ज्यादा लोग आएंगे। सो डोंट थिंक यार वो लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कुछ हो सकते हैं, नॉट सेइंग एवरीवन इज जेन्युइन, बट मोस्ट नहीं होते। ठीक है, मोस्ट लोग चोर नहीं होते। सो कीप फेथ इन देम, हाँ, कीप फेथ इन दैट इंडस्ट्री। बाकी यू हैव टेकन अ ब्रेव स्टेप टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। So do follow my channel, do subscribe to my channel, because I'll keep bringing more strategy videos. I'll bring a few guests, I'll give strategy videos, a sneak peek into how MBA life was, and I am also there on Telegram, जहाँ पे मेरा एक group है. I'll keep interacting with you. Just I'm not very much receptive to DM, but हाँ, जितना आप interact करना चाहो मेरे से ग्रुप में पूछो, बात करो, गाइड मैं कर दूंगा खुशी खुशी. So thank you so much for being here. I'm sure the journey is not going to be very easy, but I will be there with you on this journey, and we'll make history together. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.